Expert directives, विशेषज्ञ जासूस. As we walked back towards the clinic, Seven said. जब हम क्लिनिक की ओर वापस जा रहे थे तो सेवन ने कहा, He can't be poor if he's a crook on the run, I told him. वह गरीब नहीं हो सकता अगर वह भागते हुए अपराधी है, मैंने उसे बताया. Do you really think he's a criminal, Maya? He doesn't look like one. निषाद looked doubtful. क्या तुम सच में उसे अपराधी समझती हो, माया? वह अपराधी जैसा नहीं दिखता, निषाद ने संदेह जताया. Of course he's one. Seven, I said, and he certainly isn't starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. बिल्कुल, वह अपराधी है, सेवन, मैंने कहा, और वह भूखा नहीं है. श्री मेहता ने हमें बताया था कि रमेश उसके खाने का पैकेट नीचे वाले रेस्टोरेंट से लाता है. But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? Nishad said. लेकिन माया, श्री मेहता ने हमें बताया था कि वह कहीं काम नहीं करता, तो उसे खाने के पैसे कहाँ से मिलते होंगे? निषाद ने कहा. Exactly, I exclaimed. He must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. It's probably full of silver and gold and jewels and... बिल्कुल, मैंने चिल्लाया. उसे कहीं ना कहीं पैसे छुपा कर रखे होंगे, शायद उसके कमरे के उस संदूक में. वह शायद चांदी, सोने और गहनों से भरा हुआ है. What rubbish, निषाद interrupted. क्या बकवास है, निषाद ने बीच में ही टोका. I know I'm right, stupid, I told him. By the way, Seven, did you see his scars? I couldn't, it was too dark. But I bet he got them during shootout with the police or something. मुझे पता है कि मैं सही हूँ. मूर्ख, मैंने उसे कहा. वैसे सेवन, क्या तुमने उसके घाव देखे थे? मैंने नहीं देखे, क्योंकि बहुत अंधेरा था, लेकिन मुझे यकीन है कि ये उसे पुलिस से मुठभेड़ के दौरान हुए होंगे. Mummy told us quite clearly they were burn scars, Nishad said firmly. मम्मी ने हमें साफ साफ बताया था कि वह जलने के निशान हैं, निषाद ने दृढ़ता से कहा. Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. शायद पुलिस को उसे बाहर निकालने के लिए उसका घर जलाना पड़ा होगा, मैंने सुझाव दिया. सेवन असमंजस में दिखा. On the Monday following Mamma's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Girgaon as I was spending the evening with school friend. मम्मा के जन्मदिन के बाद सोमवार को सेवन अकेले मम्मा के साथ गिरगांव के क्लिनिक गए क्योंकि मैं एक स्कूल फ्रेंड के साथ शाम बिता रही थी. When they returned, Nishad told me he'd been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. जब वे लौटे, निषाद ने मुझे बताया कि वह श्रीनाथ से मिलने गए थे
और मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं वहां नहीं थी। 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. 7 श्रीनाथ की दुबली पतली अवस्था को लेकर काफी परेशान था और उसे यकीन था कि वह भूखा था। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." उसने मुझे बताया कि उसने उस शाम श्रीनाथ के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और कहा, "दरवाजा जल्दी खोलिए, श्रीनाथ." The man had opened it and asked him, "Lost another marble?" उस आदमी ने दरवाजा खोला और उससे पूछा, एक और गिल्ला खो दिया? He had obviously recognized my brother. उसे स्पष्ट रूप से मेरे भाई को पहचान लिया था। No, said Nishad. He had taken the man's hand in his own and thrust bar of chocolate into it. नहीं, निषाद ने कहा। उसने उस आदमी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे एक चॉकलेट का टुकड़ा थमा दिया। Did you get chance to peek into the trunk, 7? I asked. क्या तुम्हें संदूक में झांकने का मौका मिला, 7? मैंने पूछा। Nishad looked disappointed. He didn't even ask me in, he said. Then he smiled. निषाद मायूस नजर आया। उसने मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा, उसने कहा। फिर वह मुस्कराया। But I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. लेकिन मैंने कुछ जाना, माया। मैं उस रेस्टोरेंट में गया जहां रमेश काम करता है और उससे बात की। Good for you, Mr. Detective, I said, patting him on the back. I hope you questioned him properly. अच्छा किया, मिस्टर डिटेक्टिव, मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, उम्मीद है कि तुमने ठीक से उससे पूछताछ की होगी। 7 looked pleased. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening, and 2 cups of tea, 1 in the morning and 1 in the afternoon. 7 खुश नजर आया। रमेश ने मुझे बताया कि वह श्रीनाथ के लिए हर सुबह और शाम 2-2 खाने का पैकेट और 2 कप चाय, एक सुबह और एक दोपहर में लाता है। Ramesh says he's not very particular about what he eats, it's always the same food, 2 chapatis, some dal and vegetable. रमेश कहता है कि वह खाने में खास पसंद नहीं करता, हमेशा वही खाना मिलता है, 2 चपाती, कुछ दाल और एक सब्जी। Mr. Nath pays cash and tips well. श्रीनाथ नकद भुगतान करते हैं और अच्छा टिप देते हैं। रमेश told me something very strange, Maya, 7 added. रमेश ने मुझे कुछ बहुत अजीब बात बताई, माया, 7 ने जोड़ा। Almost every Sunday, he carries 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man is with him each time. He's tall, fair, stout and wears spectacles. लगभग हर रविवार को वह श्रीनाथ के कमरे में 2 लंच लेकर जाता है और हर बार वही आदमी उसके साथ होता है। वह लंबा, गोरा,
मोटा और चश्मा पहने हुए है। रमेश says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. रमेश कहता है कि उसका मेहमान बहुत बात करता है, जबकि श्रीनाथ मुश्किल से बोलते हैं। Well done, Nishad, I told him. Now that we've made some progress with our inquiries, we'll have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. शाबाश, निशाद, मैंने उसे कहा। अब जब हमने अपनी जांच में कुछ प्रगति की है, हमें सारे तथ्यों को विशेषज्ञ डिटेक्टिव की तरह सॉर्ट करना होगा ताकि हम अपराधी को फंसा सकें। How you do go on, माया, सेवन साइड। तुम कैसी बातें करती हो, माया, सेवन ने आ भरते हुए कहा। How can you possibly imagine he's a crook? He looks so ordinary. तुम उसे अपराधी कैसे सोच सकती हो? वह तो बहुत सामान्य दिखता है। Criminals can look quite ordinary, smarty, I retorted. Did you see the picture of the Hyderabadi housebreaker in the papers yesterday? He looked like any man on the street. अपराधी बिल्कुल सामान्य लग सकते हैं, समझदार, मैंने जवाब दिया। क्या तुमने कल अखबार में हैदराबादी घर फोड़ने वाले की तस्वीर देखी थी? वह किसी भी आदमी जैसा दिखता था। निशाद लुक डाउटफुल। निशाद को संदेह हुआ। The monsoons broke the next day. अगले दिन मानसून आ गए। Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with heavy downpour. अंधेरे बादल, आंखों को चौंधिया देने वाली बिजली की चमक और गरजते हुए बादल पूरी ताकत से टूट पड़े, सड़कों को भारी बारिश से बाढ़ में बदल दिया। School was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. स्कूल को गर्मी की छुट्टियों के बाद फिर से खुलना था, लेकिन बाढ़ के कारण कोई भी यातायात सड़क पर नहीं चल सका और एक अप्रत्याशित छुट्टी मिल गई। I thought I'd spend the time usefully. मैंने सोचा कि इस समय का सदुपयोग करूंगी। I sat at my desk in our bedroom with sheet of paper before me. मैं हमारे कमरे में अपने डेस्क पर बैठी थी। मेरे सामने एक कागज की चादर रखी थी। I wrote in large block letters. मैंने बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा। Catching a crook. एक अपराधी को पकड़ना। Expert detectives, Nishad and Maya Pandit by appointment to the whole world. विशेषज्ञ डिटेक्टिव, निशाद और माया पंडित, संपूर्ण दुनिया के लिए नियुक्त। Then I began writing. फिर मैंने लिखना शुरू किया। About half an hour later, I turned towards Seven who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. करीब आधे घंटे बाद, मैंने सेवन की तरफ देखा, जो पेट के बल लेटा था, अपनी ठोड़ी को अपने हाथों में पकड़कर कॉमिक्स पढ़ रहा था। Want to hear what I've written? I asked.
क्या तुम वह सुनना चाहोगे जो मैंने लिखा है? मैंने पूछा। He looked up questioningly. उसने सवालिया नजरों से ऊपर देखा। I've listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him, I said. मैंने श्रीनाथ के बारे में जितने तथ्य हमें पता है, उन्हें लिस्ट किया है, जो हमें उसे फंसाने में मदद कर सकते हैं, मैंने कहा। Want to hear? क्या तुम सुनना चाहोगे? Seven nodded. Seven ने सिर हिलाया। Fact number I read, his name is Mr. Nath. We must discover his first name. तथ्य नंबर मैंने पढ़ा, उसका नाम श्रीनाथ है। हमें उसका पहला नाम पता करना होगा। Do you think that's his real name, Maya? निषाद asked. क्या तुम समझती हो कि यही उसका असली नाम है, माया? निषाद ने पूछा। Probably not, I said. Most crooks have an alias. शायद नहीं, मैंने कहा। अधिकतर अपराधियों के पास एक उपनाम होता है। I added a big question mark after Nath. मैंने नाथ के बाद एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जोड़ दिया। Fact number 2, I read on, the tenants at Shankar House say he's mad, strange and unfriendly. तथ्य नंबर 2, मैं आगे पढ़ी। शंकर हाउस के किराएदार कहते हैं कि वह पागल, अजीब और अविनयशील है। नंबर 3, he doesn't talk to anyone and is mannerless. नंबर 3, वह किसी से बात नहीं करता और उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। But he did talk to us, Maya, and Mama says he's very polite, निषाद interrupted. लेकिन वह हमसे तो बात करता है, माया, और मम्मा कहती है कि वह बहुत शिष्ट है, निषाद ने बीच में कहा। He only talked to us because he had to, I said, and since he was under Mama's medical treatment, he had to be polite. वह सिर्फ हमसे इसलिए बात करता है क्योंकि उसे बात करनी पड़ी थी, मैंने कहा, और चूंकि वह मम्मा के इलाज के तहत था, उसे शिष्ट होना पड़ा। फैक्ट नंबर 4, he doesn't receive any letters. 7 nodded. तथ्य नंबर 4, उसे कोई भी पत्र नहीं मिलता, 7 ने सिर हिलाया। नंबर 5, he's been living in room 10 of Shankar House for more than a year, I continued. नंबर 5, वह शंकर हाउस के कमरे नंबर 10 में 1 साल से ज्यादा समय से रह रहा है, मैंने आगे कहा। नंबर 6, he doesn't work and sits in his room all day. नंबर 6, वह काम नहीं करता और पूरे दिन अपने कमरे में बैठा रहता है। नंबर 7, the kids in Shankar House and even some of the grown-ups are scared of him. नंबर 7, शंकर हाउस के बच्चे और यहाँ तक कि कुछ बड़े लोग भी उससे डरते हैं। नंबर 8, he has no visitors except for spectacled, fair, fat man who visits him on Sundays for lunch. नंबर 8, उसे कोई भी मेहमान नहीं मिलता, सिवाय एक चश्मा पहने, गोरे, मोटे आदमी के, जो हर रविवार को लंच के लिए उसे मिलता है।
Number 9. Food and tea are taken to his room by Ramesh from the restaurant downstairs. He doesn't care what he eats, pays his bill immediately and tips well. Number 9. खाना और चाय उसे नीचे के रेस्टोरेंट से रमेश लाकर उसके कमरे में देता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या खाता है, तुरंत बिल चुकाता है और अच्छा टिप देता है। That ends my list. यह मेरी सूची का समापन है। Have I forgotten anything? 7. क्या मैंने कुछ भूल तो नहीं दिया? 7. Nishad had obviously not been paying too much attention to my list of facts. निषाद ने स्पष्ट रूप से मेरी तथ्यों की सूची पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। All he could say was, "Poor man, Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends." वह केवल यही कह सका, गरीब आदमी है, माया, वह कितना अकेला होगा अगर उसके पास कोई दोस्त नहीं है। How can a crook have friends, idiot? I almost shouted. एक अपराधी के पास दोस्त कैसे हो सकते हैं, मूर्ख, मैंने लगभग चिल्लाया। At least he has one friend, the one who meets him on Sundays, said Nishad. कम से कम उसके पास एक दोस्त है, वही जो उसे रविवार को मिलता है, निषाद ने कहा। Brilliant thought occurred to me just then. तभी मुझे एक शानदार विचार आया। That man must be Mr. Nath's accomplice in crime, I said. वह आदमी श्रीनाथ का अपराधी साथी जरूर होगा, मैंने कहा। Maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner, Mr. Nath, for expenses. शायद वह सारा माल अपने पास रखता है और समय समय पर उसे अपना हिस्सा श्रीनाथ को खर्चों के लिए दे देता है। That's it. I'm sure I'm right. बस मुझे यकीन है कि मैं सही हूँ। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya, said Nishad angrily. अगर तुम उसे अपराधी कहने पर अड़ी हो, तो मुझे लगता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं चर्चा करना चाहता, माया, निषाद ने गुस्से में कहा। He can't be such bad man if he gives Ramesh such generous tips. वह इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता, अगर वह रमेश को इतना अच्छा टिप देता है। Ramesh probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. शायद रमेश को उसके अतीत के बारे में कुछ पता है, इसलिए श्रीनाथ उसे चुप रहने के लिए रिश्वत दे रहा होगा, मैंने कहा। Nishad glared at me with his arms tightly crossed across his chest. निषाद ने अपनी बाहें कसकर छाती पर बांधकर मुझे घूरा। I was beginning to get fed up with him. मुझे अब उससे चिढ़ होने लगी थी। How can we make any progress with our investigations if you take that attitude? 7. I asked. अगर तुम इस रवैये को अपनाओगे, तो हम अपनी जांच में कैसे कोई प्रगति कर सकते हैं? 7. मैंने पूछा। I'll cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook,
said 7. मैं सिर्फ तभी सहयोग करूंगा जब तुम यह विचार छोड़ दोगी कि वह भागा हुआ अपराधी है, 7 ने कहा। You really make me angry. तुम सच में मुझे गुस्सा दिलाते हो। I almost hit him. I make you angry, you stupid oaf, I shouted. मैंने लगभग उसे मार ही दिया। तुम्हें गुस्सा आता है, मूर्ख, मैंने चिल्लाया। You make me mad. What is the point of all these inquiries if he's not a crook? If you think he's a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. तुम मुझे पागल बना देते हो। अगर वह अपराधी नहीं है, तो इन सारी जांचों का क्या मतलब है? अगर तुम सोचते हो कि वह कोई नहीं है, तो उसे लेकर क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे बताओ। निशाद looked thoughtful. निशाद सोच में डूबा हुआ दिखा। I'd like to find out why he's so thin and why he's so lonely. I want to know why he doesn't have any friends and lives alone. मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह इतना पतला क्यों है और इतना अकेला क्यों है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसके पास दोस्त क्यों नहीं है और वह अकेला क्यों रहता है। Try to understand, 7, I told him. समझने की कोशिश करो, 7, मैंने उसे बताया। If he's lived in Shankar house for a year and hasn't made a single friend, there's something wrong. अगर वह शंकर हाउस में 1 साल से रह रहा है और उसने एक भी दोस्त नहीं बनाया, तो जरूर कुछ गड़बड़ है। He's obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. वह जाहिर तौर पर डरता है कि कोई उसे पहचान कर पुलिस को सूचना दे देगा। Maybe no one's tried to make friends with him, निशाद protested. शायद किसी ने भी उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश नहीं की, निशाद ने विरोध किया। Why should anyone bother? You've seen what a nasty bear he is, I said. किसी को क्यों तकलीफ देनी चाहिए? तुमने देखा है, वह कितना खतरनाक आदमी है, मैंने कहा। I don't care, said Nishad stubbornly. I like him and I'm going to try and be his friend. मुझे फर्क नहीं पड़ता, निशाद ने जिद में कहा। मुझे वह पसंद है और मैं उसकी दोस्ती करने की कोशिश करूंगा। Friends with a crook. हाँ। You're crazy, 7, I said. एक अपराधी से दोस्ती। हाँ। तुम पागल हो, 7, मैंने कहा। The cops will take you to jail with him. Do you want that to happen, you idiot? पुलिस तुम्हें उसके साथ जेल ले जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो, तुम बेवकूफ? Nishad merely glared at me and quickly walked out of the room. निशाद ने बस मुझे घूरा और जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। My theory seemed to have made no impression on him at all. मेरे सिद्धांतों का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। Have a good day. See you in the next video. Thank you. आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं।
अगले वीडियो में। धन्यवाद।